रिसेंटली मैं कोई एक वेब सीरीज़ देख रहा था, वहाँ पे वो बॉडी पड़ा है, उसके सामने खाना खा रहा है, दाल चावल कुछ तो खा रहा है, और उसके बीच में वो टच भी कर रहा है, फिर से खाना खा रहा है। तो ये सब तो हम नहीं करेंगे। फॉरेन से क्या, ये पॉडकास्ट भी देखने के टाइम सबसे पहली चीज ना उनके दिमाग में ये आएगी कि दया कुछ तो कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। जो टेलीकास्ट किया गया था इतने साल से, हाँ। ये सब See, कितना सच है कितना झूठ है। see, I will tell you one thing. सर, डू यू थिंक जो मर्डरर्स होते हैं, डू दे सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू? There were multiple openings on his abdominal region. So she said this openings which you see, ये जो है ना, ये stab injury. तो मैं बोला आपको क्यों लग रहा है stab injuries है? हाँ, नहीं ये stab injury है सर, पक्का इसने इसको मारा. You have to give a scientific answer. And the public has to understand here every time whatever they say is not right. So you have to rely on an expert to understand कि यार whether this is the thing that has really happened, right. or is it something else. आप जब भी ऐसे कोई मे बी कोई हाई प्रोफाइल केस अगर आपने कोई हैंडल किया कर रहे थे, तो आपको कभी कोई थ्रेट्स मिले ऐसे? मेरे सीनियर्स को मिला है और मिलते आता है डेथ थ्रेट्स? डेथ थ्रेट्स. अभी तो दिवाली का टाइम था, तो हम जब गाड़ी में निकले थे तो सब जगह ब्रेथ एनालाइजर वाले पुलिस सब खड़े थे. That only gives you an idea about. Welcome to Dr. Saab. My name is Dr. Tanya, and today you are tuning into our episode where we are going to crack open the world of forensic medicine, where every doctor becomes a detective and a case becomes a crime thriller. Our guest, Dr. Philemon Cherian, who is a professor in forensic medicine and is also a medico-legal consultant, has seen it all. The crime scenes, the courtroom drama, and the science that bridges the two. So without further ado, let's get started with our episode. डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब Hello, sir. How are you? I'm good. How are you, Tanya? I'm really good, and it's really good to see you after a very long time, sir. I know, even me. I'm very happy that you called me after a long time. But I thought after second year's exam and I left DY. Yeah. I thought you all have forgotten me, but I'm thankful that I'm grateful and I feel good that you have called me for this podcast. You considered me for this podcast. No, sir. It's my pleasure to have you on this show today. Thank you so much. Yeah. And yeah, आपको कैसे कोई भूल सकता है? इतना आपकी personality ऐसी थी कि भूल कैसे सकता है? Personality, with this I'll remember one thing that 1 week back I saw 2-3 guys who just passed out after MBBS. They are tutors at my college. Okay. When I saw them, they were like, "Sir, do you remember us?" I was like, "Oh God, these people have become tutors now." जिसको मैंने MBBS सिखाया है, वो लोग ट्यूटर बन गए. Forensic में? नहीं, in other departments. So the thing is, at that time I realized कि मैं old बन गया हूँ, लेकिन I've grown old now. आपको reality check मिल गई. Yeah. कल salt and pepper दुकाना बाकी है. All right, sir. फिर let's start with this podcast. Could you please tell us something about your background, how you grew up, where you grew up? Okay. For that, I am basically a Malayali from Kerala. Okay. That you all will you can come to know from my surname itself, Cherian. But then I was born in Bhopal. I brought up in Mumbai. Okay. So after that, I did my UG, then my PG from various colleges, not the same college, and outside Maharashtra. Then right now I'm settled in Maharashtra itself. All right. Okay. Sir, what initially sparked your interest in medicine? To be very frank, it was not my choice. Okay. But then, as any other 18-year-old boy, writing this NEET exams, writing this private colleges ka exams, going to various states, writing their exams, all this I have also done. It is not like, I have not done it. And then finally, I ended up having MBBS ka seat. So I was like, okay, let's go. Because mere to kuch bhi karo. But personally, if you ask me what I wanted to become, I always wanted to become a pilot. Oh. Yeah, and my plan was like, let's go for that. But my dad never wanted me to do and pilot aviation. So like, no. A plan cancel. Do anything else but not pilot. Oh. So here I am with you in this podcast.
नहीं तो आप अभी कोई प्लेन चला रहे होते। 100%. ओके, आपकी एक्सपीरियंस यूजी और पीजी के बारे में कुछ बता सकते हो? UG, I have lot of memories because I was in a place which was very beautiful, which you will also know if I use a term called as French colony, पौंडीचेरी। Pondicherry. So I was in Pondicherry, and first year though, as everyone's ragging and everything was going on. हाँ। So उसके बाद में we started having friendship with seniors, with our colleagues, girls, boys, everyone. So evening में बाहर जाओ, रॉकी बीच में बैठो, फिर वहाँ पे मैंगो आइसक्रीम, मैंगो लाया समथिंग, which used to be, वो 5 रुपए का मिलता था, अपनी औकात उतनी थी तो हम वही करते थे. So used to buy that, sit over there, फ्रेंच कॉलोनी घूमो, ऐसे लॉन्ग वीकेंड्स आ गए तो चेन्नई चले जाओ, अच्छा। या कहीं पे चले जाओ जो नियर बाय है. मैंग्रोव फॉरेस्ट वाज देयर. सो यूजी का बहुत मेमोरीज है, एंड सेकेंड ईयर वाज द मैक्सिमम दैट आई एंजॉयड, एंड देन दैट आफ्टर सेकेंड ईयर, बिकॉज सेकेंड ईयर वाज 1.5 ईयर का. सो पहले 1 ईयर में तो हम कुछ करते नहीं है. द लास्ट 6 months वी स्टार्ट स्टडिंग. बैक बेंचर होने का यही था बात. एंड देन इंटर्नशिप में अगेन आई एंजॉयड अ लॉट. मैं अगर समझो हम लोग क्या करते थे, ड्यूरिंग डे टाइम द गर्ल्स यूज्ड टू सिट इन कैजुअलिटी, ओके। एंड एट नाइट टाइम आई यूज्ड टू सिट. अच्छा। दिस वाज द डील. सो डेली हम लोग को जो करना है, मॉर्निंग में मैं मस्त मजे करता था, नाइट में जाके कैजुअलिटी में बैठ जाओ. बट इट मस्ट बीन फन टाइम्स ना? या 100%. ऊपर से वो या पौंडीचेरी सो आई टेल टू ऑल द यूजी स्टूडेंट्स कि यार ठीक है, क्लास है, अटेंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन एंजॉयमेंट हैज टू गो ऑन. यू नो कि अपना पर्सनालिटी भी देखना है, अपना पर्सनल लाइफ भी देखना है. साइकोलॉजिकली मुझे क्या इफेक्ट कर रहा है, हर समय पढ़ाई करते रहोगे तो टेंशन आधा ही बढ़ते रहेगा. बराबर। हाँ, थोड़ा बहुत बंक भी मार लेने का, इसमें कुछ होगा नहीं, बिकॉज दैट विल ऑल क्रिएट मेमोरीज. नाउ अब्दुल कलाम ऑल्सो सेड द सेम थिंग. Bunking the class will make the most memories in your life. So True. I feel that is the best thing that you can do. That you can do only when you are a UG or a PG. Once you pass out, you become a consultant. I don't think you can enjoy so much. एनीवे सो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कैसा था? Post graduation again was interesting. Just because I was in a department which only deals with postmortem. Like, you know, this is the thing that people have a concept ki फॉरेंसिक मतलब पोस्टमार्टम, राइट। डेड बॉडीज. बट ऐसा नहीं था. हाँ, ये सब तो हमारा ड्यूटी तो था ही. ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में पोस्टमार्टम, सेक्सुअल असॉल्ट एग्जामिनेशन, टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स एंड ऑल वेयर देयर. बट डजंट मीन दैट वाज द ओनली वर्ल्ड दैट वी हैड. I had my seniors, Dr. Madan Raj, who is right now medical officer at Tamil Nadu. Okay. I had one more senior, Dr. Cheryl Suarez, who is another associate professor in Goa Medical College. She settled over there. These were the two people because of whom my classes became interesting. मेरे PPTs आप देखोगे, और जो मेरे most of the dialogues that I say during the class are because of these two people who made me realize कि Phil, this is how you have to take class. देखो, इतना knowledge इस चीज़ों में होना चाहिए. सो स्टार्टिंग में मैं इतना लाइक फॉरेंसिक में इतना बेहतरीन नहीं था. आई शुड बी थैंकफुल टू डॉक्टर शेरिल सुआरेस हु मेड मी रियलाइज दिस आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू यूजी स्टूडेंट्स. हाँ, उन लोग तेरे को शायद रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बट इट शुड बी देयर इन योर माइंड. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस इफ आई एम सेइंग अ लाइन फ्रॉम द स्लाइड? ओके, सो आई शुड नो द आंसर फॉर द सीन, दैट इफ एनीवन आस्क्स मी फ्रॉम द audience, I should be able to answer it. From there came the confidence to take classes. Achha. All the graphics that you see, all the lines that you see, that is all this seniors who have helped me. And thanks to all my teachers also. I should be thankful to my HOD, my PG timer. He also has helped me a lot, like how to present yourself when you go to the court. Court, yeah. When you go to a public, address a public, like you go to an college, वहाँ पे तो सब टीचर्स लोगों को क्लास ले रही है, तो तेरे में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो सिखा रहा हूँ दैट इज़ द बेस्ट. सो वो तभी आएगा व्हेन यू प्रेजेंट योरसेल्फ वेल. राइट। ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर्स जो है, सर ने मेरे को समझाया था कि हाँ भाई, दिस आर द थिंग्स
that one has to keep in mind. मुझे अगर कोई पूछे कि फॉरेंसिक में क्यों इंटरेस्ट आया तो इट इज़ बिकॉज ऑफ यू. No, really. जैसे आप बोले कि आपने आपके टीचर से सीखा कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे अपना आइडियाज़ को पुट फोर करते हैं, वैसे ही आप जब पढ़ाते थे हमको इट वाज यू मेड फॉरेंसिक वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस. Thank you. अगर कुछ नॉलेज मुझे फॉरेंसिक के बारे में इट्स बिकॉज ऑफ यू. That's what I wanted. I'm happy now. ऑलराइट Very- सर, Yes. व्हाट ड्रू यू टू फॉरेंसिक मेडिसिन? आपको मतलब फॉरेंसिक मेडिसिन लेना है एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन कब पता चला? क्योंकि नॉर्मली ये सबका फर्स्ट चॉइस नहीं रहता है. Right. 100%. So I also wanted to become a surgeon or an ortho like anyone else. ओके. Because of XYZ reasons. ठीक है, XYZ reasons doesn't mean anything else. It is like, the benefit, the clinical part, या. and all that. और तुम 10,000 हॉस्पिटल में, but this is what every individual thinks. तुम अगर नॉन क्लिनिकल या पैरा क्लिनिकल प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आप अगर पीजी करते हो तो यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज. दैट इज व्हाट पीपल थिंक. लाइक आई बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट आई टोल्ड अबाउट वन सर. He is in one specific department, but then he is so much into research या. that he is more famous than any other that department का person. राइट. है ना. तो वो चीज़ हमको समझना है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, आप कौन से भी चीज़ में लो. इट इज़ नॉट लाइक आपने फॉरेंसिक में किया तो यार, जैसे मैंने बताया, पीपल हैव अ कंसेप्ट की फॉरेंसिक मतलब दिस आर द थ्री branches that they deal with. Other than that they cannot deal with anything else. It is not like that. राइट. You can also become a medico-legal consultant if you do that specific education and you have knowledge about it. And many seniors of mine, even in Maharashtra, in Karnataka, even Gujarat, I know many people who are doing it ओके. along with their own medical colleges or maybe in a hospital setup. They are doing it, and it is not wrong. So this is not the only branch that we have. So that is what interested me, and thought ki yaar chalo let's do it. And even after death we can give justice to a person. राइट. That is the best thing ना. Like जिंदा आदमी को दे रहे हो थैंक्स बोल रहा है, लेकिन मरा हुआ आदमी को भी आप जस्टिस दे रहे हो because of your actions. Your as a doctor, my actions will give him justice. What I am collecting, the evidence that I collect, will give him justice. And that is a big thing. That is the greatest blessing that you can get. That is really true. Sir, you talked about medico-legal consultancy as a branch after forensic medicine. आप LLB भी कर रहे हो साथ ही. Do you think that has added into your career right now? Yes. The knowledge that you have gained through studying LLB? Yes. I'll tell you one thing, Tanya. मैं जितना भी तुम लोगों को क्लास में, for example, if I'm teaching you about murder, ठीक है, about 300 IPC, it was IPC previously, now it has come down to 100 BNS, 100 and 101. So culpable homicide, murder, इन सब के बारे में मैं तुम लोगों को explain करता था, लेकिन I never was not able to express what was there in my heart. Understood? Like I know the stuff. I know that this is what it is. Right. No, I have told you everything in that. It's not that a UG student जितना जानना है उतना मैंने cover up किया है. ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है. I've done justice to my work. तो but LLB करने के बाद होता यूँ है ना कि you know in detail what has to be explained. Each word का एक meaning है. When you say intention, when you say likely to cause death, such an injury, ना, तो ये सब words का एक एक meaning है. Okay. तो इन सब चीज़ों को अगर समझना है तो LLB has added that knowledge into me and it has helped me. Now when I read back or try to take a class or explain it to someone, it is easy for me because I know this part also, the legal part also. Right. पहले medical part तो पता ही था, so legal part भी पता है. अब medico legal दोनों साथ में प्रोडक्शन हो जाता है कि हाँ भाई this is the thing. So और clarification मुझे भी आ गया है, और जब मैं क्लैरिटी के साथ में उनको बोलता हूँ सामने वाले को और ज़्यादा समझ में आता है. Right. So that is what has helped me by doing LLB. Yes. सर, जब भी नॉर्मली ना जो पब्लिक है
फॉरेंसिक या ये पॉडकास्ट भी देखने के टाइम सबसे पहली चीज ना उनके दिमाग में ये आएगी कि दया कुछ तो कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। मतलब सबसे पहला एक्सपोजर ही फॉरेंसिक का वाज बिकॉज ऑफ सीआईडी। या तो आपको लगता है क्या ऐसा इन्फ्लुएंस। ये जो मीडिया में बताया है, जो टेलीकास्ट किया गया था इतने साल से, हाँ ये सब सी कितना सच है कितना झूठ है? सी आई विल टेल यू वन थिंग, थोड़ा तो हाइप है। हर स्टोरी में होता ही है। हम्म, लाइक यू नो रिसेंटली मैं कोई एक वेब सीरीज देख रहा था, वहाँ पे वो बॉडी पड़ा है, उसके सामने खाना खा रहा है, दाल चावल कुछ तो खा रहा है, और उसके बीच में वो टच भी कर रहा है, फिर से खाना खा रहा है। तो ये सब तो हम नहीं करेंगे। इवन इफ अ लाइव बॉडी, अगर यू नो आप और मैं बैठे, आई टच यू एंड देन आई स्टार्ट ईटिंग विद द सेम हैंड्स, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। हम तो करते नहीं, खास करके तो मैं तो कभी नहीं किया। हाँ, मैंने रात को 12 बजे मैं मॉर्चरी में बैठ चुका हूँ, सवेरे 5 बजे पोस्टमार्टम कर चुका हूँ, ऐसा सब किया है। भूख लगा है तो बाजू वाले रूम में जाके खाना खा के आके बैठा हूँ, या बॉडी नहीं है तो टॉपसी रूम में बैठ के यू नो भूख लगा है अभी कुछ करने को, तो वैसा कर चुका हूँ। लेकिन बट ऐसा नहीं है कि यू नो बॉडी के सामने, दैट इज़ डिसरेस्पेक्टिंग द बॉडी। तो ये थोड़ा बहुत हाइप है, या उसके बॉडी में यू नो कुछ पाउडर पड़ा था उसको टच करके और ये कोकीन है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। देख, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं भी तो अंडर द इन्फ्लुएंस हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग कोकीन, तो फिर मैं क्या रिजल्ट दे रहा हूँ। सो वैसे केसेस में हम क्या करते हैं कि वो सैंपल या पाउडर पड़ा है तो वी फॉरवर्ड इट टू दी FSL टू कम टू अ कंक्लूजन वेदर इट इज कोकीन और सम अदर टैल्कम पाउडर। समझ में आया? या नमक है या आटा है, हमको वो भी तो डिस्टिंग्विश करना है ना, वेदर इट इज अ पॉइजन और अ फूड आइटम। सो दैट इज इट। सो थोड़ा बहुत हाइप तो दिखाते ही है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच दे हैव शोन देयर वाज अ रियल थिंग। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता ही है, होता है। यस, थोड़ा हाइप था बट ओके सर। So let's get into the core content of our podcast. Okay. Basically हम 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। Okay. Okay. Starting with the most chilling aspect of forensic medicine, murder cases. ओके। तो normally हम लोग क्या है, Netflix लगाते हैं, we watch shows, but we have our own Sherlock Holmes today, right? ओके। So आपसे हमको थोड़ा बहुत information चाहिए। सी आई विल टेल यू वन थिंग, कोई मर्डर होता है तो पहला चीज है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस। Right. It is very important. Recently, I saw this movie, Gumrah. Have you seen it? It is in Netflix. It is a movie of Aditya Roy Kapoor. Why I am saying this is because evidence collection में ही आप prove, disprove कर सकते whether a murder has occurred, whether it was actually a murder, whether it was a planned thing, or whether it just happened. Like you see that what is that case, रुस्तम वाला जो मूवी बनाया था, हाँ। ठीक है। सो उसके अंदर मानिक शाह, ठीक है ना, मानिक शाह केस में उसके अंदर ये जानना था कि इसने जो एक्ट किया है, हाँ, ये एक्ट उसने प्री प्लान करके किया है या इट वाज ऑल ऑफ अ सडन दैट ही टुक अप अ गन एंड यू नो शूट कर दिया उसने। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, व्हाट वाज द इंटेंशन। तो हमारा जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, it gives you the answer when you're doing an investigation. It helps the investigating officer to come to a conclusion whether it is a case of murder or whether it is a case of a culpable homicide or something else, an accidental case. Okay. Understood? हाँ. So this is what forensic plays a vital role between the legal system, judicial system, and the medical system. That is like a bridge. The evidence collection. Yeah, 100%. That has, वहाँ पे अगर आप गड़बड़ करते हो एविडेंस कलेक्शन में, वो मैं हॉस्पिटल फाइल में भी होने दो। अगर आप बोलते हो कि एक पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, या आप बोलते हो HIV एड्स है, ठीक है, या फिर एनी अदर डिजीज या इन्फर्मिटी है, इंजरी है, तो उसके लिए आपने सपोर्टिंग एविडेंस क्या रखा है? बराबर, समझ में आया? तो इफ आई एम सेइंग दैट देयर इज अ फ्रैक्चर in the upper limb, lower limb, what is the supporting evidence? Did you take an X-ray? Did you do an MRI? Or whatever related documents has to be done, documentation has to be done. If that is done,
you do not have to do anything. Then the fact that the fact will speak for itself. Right. है ना, रेसिप्सा लिक्विडेटर जो है कि द फैक्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ. यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग. यू डू नॉट हैव टू प्रूव डिसप्रूव एनीथिंग कि यार उसको फ्रैक्चर हुआ नहीं था, मैंने लेकिन किया नहीं, मुझे प्रूव करना था, हमको पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव एन एक्सरे, यू लुक एट इट, यू शो इट टू देम, वहाँ पे क्लियर कट है, दिखता इज एन एविडेंस. सो इट इज द सेम वे विद पोस्टमार्टम्स आल्सो. You are saying it is a case of murder. What are the things you want to prove? तुमको बोलना है कि भाई ये मर्डर है ना. What are the things that you have collected to prove it? हाँ तुमको बोल दिया है पुलिस वालों ने या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कि यार ये मर्डर केस है, बट यू फील इट इज नॉट अ केस ऑफ मर्डर. So why do you feel that it is not a case of murder? So that can be disproved. That has to be disproved by you as a forensic expert. So your collection of evidence has to be very पक्का. It cannot be like अरे मैं भूल गया, मैं मेरा कुछ और प्रॉब्लम चल रहा था, मैं इस बीच में या 3 केसेस करने के बाद 4th 5th केस ये था, तो मुझे याद नहीं इसमें क्या क्या लेना था, तो that becomes a problem. Understood? सो ड्यूरिंग अ क्राइम सीन, अगर यहाँ पे क्राइम सीन है, ये सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं? सबसे पहला चीज़ तो कॉर्डनिंग. बिफोर एंटरिंग इटसेल्फ द पुलिस विल, अभी ये क्राइम सीन है, बट द होल एरिया विल बी कॉर्डन्ड बाहर से लेकर. ठीक है ना. कॉर्डनिंग करने के बाद में यहाँ पे किसी को भी एंटर करने नहीं देंगे. तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और whoever is his sub colleagues, they all will come, they all will be standing. Other than that, no one else will be entertained. And then when we come, then हम लोग उनको पहले ही फोन कर बोल देते, देखो यार बॉडी के साथ तो छेड़खानी करना मत. Because there are times what will happen is the police will come, they will turn the body, they will shift the body from this place to some other place. ठीक है ना, या तो ओपन में रहेगा तो वो लेके अंदर आ जाएंगे, ऐसा सब होने का चांसेस है. तो उससे क्या होगा, देयर आर द साइंस ऑफ पोस्टमार्टम चेंजेस. राइट. दोज कैन बी चेंज्ड. प्राइमरी विल बी समवेयर एल्स, सेकेंडरी विल बी डेवलप्ड समवेयर एल्स. सो हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल उसका बॉडी का पोजीशन क्या था एट द टाइम ऑफ डेथ. सो दैट बिकम्स टैम्परिंग अगेन. समझ में आया. सो कभी कभी ऐसा होगा कि एंट्री वुंड कहाँ से था, एग्जिट वुंड कहाँ से था, वो कंफ्यूजन होने का चांसेस है. तो ये सब चीज़ों को हमको थोड़ा ये रखने के लिए हम लोग कॉर्डनिंग करेंगे. ओके. एंड पीपल, अगर पुलिस वाले एक हिस्ट्री बताते, इट इज़ नॉट दैट वी हैव टू रिलाई जस्ट ऑन द पुलिस पीपल. वी हैव टू रिलाई ऑन द रिलेटिव्स, वी हैव टू रिलाई ऑन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. मल्टीपल फैक्टर्स को देख के वी कम टू अ कंक्लूजन वेदर इट इज केस ऑफ homicide, suicide or accident. This is how it has been done. ओके. उसके बाद फिर हम एविडेंस कलेक्ट करना शुरू एविडेंस कलेक्शन, अगर समझो कि वहीं पे पोस्टमार्टम करना है या फिर अगर बॉडी शिफ्ट करना है, तभी एक चीज़ है कि मैक्सिमम फोटोज यहाँ पे निकालो. ओके. मैक्सिमम फोटोज, वेयर वाज द बॉडी लाइंग, अगर कहीं पे कुछ इंजुरीज है, दैट हैज़ टू बी मेंशन्ड इन योर क्राइम सीन रिपोर्ट. एवरीथिंग हैज़ टू बी रिलेटेड जो भी है सब कुछ उसमें इंडिकेट करो योर रिपोर्ट में कि दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव सीन, दिस आर द थिंग्स दैट आई हैव सीन ऑफ पोस्टमार्टम चेंजेस, इंजुरीज. ठीक है, अगर फ्रॉथ है अराउंड द नोज और द माउथ, वो फ्रॉथ के बारे में उसमें मेंशनिंग करो. ऑल दोस थिंग्स हैज टू बी मेंशन्ड एंड देन द बॉडी हैज टू बी शिफ्टेड टू द पोस्टमार्टम सेंटर. सो अब होगा यूँ कि यहाँ पे बॉडी में भी इन सुपाइन पोजिशन, आपके पास में प्रोन पोजीशन में लाए, पोस्टमार्टम लिविडिटी चेंजेस होने का चांसेस है. आपके पास में अगर समझो फोटोग्राफ्स हैं क्राइम सीन में, तो यू कैन रिलेट इट कि जब मैं क्राइम सीन के लिए गया था, पोस्टमार्टम लिविडिटी वाज प्रेजेंट इन दिस एरियाज, बट व्हेन द बॉडी केम फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एट एनी हॉस्पिटल, ओके, सो एट दैट टाइम दिस वर द प्लेसेस वेयर आई सॉ पोस्टमार्टम लिविडिटी. राइगम मोर्टिस में हैव चेंज्ड. ठीक है ना, राइगम मोर्टिस जो अपर लिम में था अब लोअर लिम में भी आ गया. तो जब क्राइम सीन में आपने देखा तो इट वाज ओनली इन अपर लिम. नाउ दैट यू सी इट इज इन लोअर लिम. सो टाइम सिंस डेथ हैज इंक्रीज्ड और चेंज्ड, है ना. तो दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन योर क्राइम सीन रिपोर्ट आल्सो, हैज टू बी मेंशन्ड इन योर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आल्सो. सो दिस two different reports that you have to write and you have to showcase to the public. I mean not to the public, to the police people. And always remember, these documents, medical legal documents, are not public documents. Those are medical legal documents. So it will be given handed over to the
judicial system only or to the legal people only. We cannot give it to the local people or to the public. ओके ओके, तो हम लोग पहले उसके बाद आफ्टर पोस्टमार्टम फिर बॉडी को हम हैंड ओवर कर देते टू द रिलेटिव्स कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में अगर आपने पूरी तरह से कलेक्ट कर दी है, हाँ so any case, whether it be murder or whether it be any kind of doubts, डाउट है उसमें आपको कि यार इसका सडन डेथ क्यों हुआ, 25-year-old यंग बॉय है, डेथ हो गया, रात को अच्छा खासा क्रिकेट खेला, सवेरे उसका डेथ हो गया, कैसे हुआ पता नहीं, रात को बॉल वॉल लग गया कहीं पे, उसने बताया नहीं, आके चुपचाप सो गया, वो छोटा मोटा इंजरीज होता है हम किसी को बताते नहीं है ना, कहीं मेजर इंजरीज होता है तो बता दे, कोई वाइटल ऑर्गन्स में लग गया पता नहीं हमको, डेथ हो गया पता नहीं कैसे डेथ हुआ, नाउ देयर इज अ डाउट, तो एट दैट टाइम यू हैव टू कलेक्ट ऑल द एविडेंस, लाइक मर्डर केस होने दो या डाउटफुल केस होने दो, सडन डेथ होने दो, सो फ्यू थिंग्स दैट यू विल हैव टू कलेक्ट इज योर histopath clay specimens, the organs of your body, and then forward few of the organs, the routine viscera to the forensic science lab, और वहाँ पे जाके ये सारे रिपोर्ट, जैसा 2 मेजर डिपार्टमेंट्स, सो उनमें से जब रिपोर्ट रिटर्न आता है उस पे बेस्ड आपका कॉज ऑफ डेथ बनता है. ओके अंडरस्टूड. सो अगर आपको मर्डर केस हो, ये हो, या सडन डेथ का केस हो, या फिर यहाँ पे डाउटफुल केस हो, वन थिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद में इफ यू हैव कलेक्टेड ऑल दिस विसेरास और ऑर्गन्स और हिस्टोपैथ, एफएसएल, दिस थिंग्स, आफ्टर दैट द बॉडी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, दैट इज हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स, दे कैन डू एनीथिंग विद इट. ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ फिर अगर सेकेंड एक्सह्यूमेशन का केस है तो वो तो अगर समझो क्रिमेशन हो गया है जैसे हिंदूस में होता है, तो वैसा अगर हो गया है तो फिर उसमें कुछ ऑप्शन हमारे पास बाकी नहीं रहता. बराबर. सो दैट इज व्हाई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, nowadays we all have this we are well versed with AV mode, या so वो सब हो जाता है, ओके. it's been taken care of. सर कुड यू शेयर एनी अनयूजुअल या कोई चैलेंजिंग केस जो आपने देखा हो? क्या एक था जब मैं मैंने वाज एन SR सीनियर रेजिडेंट की तरह, कर्नाटका की बात है. ओके. सो व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, मैं को अकेला छोड़ दिया, मतलब भाई जा, अब से तो SR है, यू हैव टू डू द क्राइम सीन. हाँ मैं पहुंच गया क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए. जैसे ही वहाँ पे गया, कॉर्डनिंग करके बॉडी रखा है, और जाके मैंने देखा तो इट इज़ पार्शियली ममीफाइड, पार्शियली स्केलेटनाइज्ड बॉडी. सो पहले तो उसकी बीवी आई, उसने देखा ये चीज़, मैंने बोला आइडेंटिफाई कर सकोगे यही है करके, बोली नहीं मेरे को पता नहीं. बोला ठीक है. फिर उसकी आई बहन, वो जैसे ही आई हंगामा शुरू हुआ. इट वाज लाइक अ सिंघम का सीन वेयर इन द कार इज before the car stops, the sister is getting out of the car. वो ऐसा सीन चल रहा है, क्या चल क्या रहा है, और हमें मेरे दिमाग में तो सिंघम वाला सीन शुरू हो गया था. तो देन जैसे ही वो बाहर आए, भाग के आके she saw and she started कि इसकी बीवी की ओर देखा, said इसकी बीवी नहीं, इसको मार डाला है. ऐसा बोला क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सो बोली सर देखो उसके हाथ में दारू का ही है, वो टेंशन में आया है, इसने जानबूझ के ये सब किया है. देन देयर वर मल्टीपल ओपनिंग्स ऑन हिज abdominal region. ओके. सो शी सेड दिस ओपनिंग्स व्हिच यू सी, ये जो है ना, ये स्टैब इंजरीज है. तो मैं बोला आपको क्यों लग रहा है स्टैब इंजरीज है? नहीं ये स्टैब इंजरी है सर, पक्का इसने इसको मारा, फिर इसके बॉडी को यहाँ पे डंप किया है और फिर ये चली गई. देखो ये ऐसे एकदम शांत खड़ी है. मैं खुद बोला नहीं, मैं बोला देखो मैडम, पहला चीज़ तो एक जो ये जो ओपनिंग्स आप देख रहे हो, दिस आर बिकॉज ऑफ मैगट्स. ओके. द इंसेक्ट्स व्हिच सिट ऑन द बॉडी आफ्टर डेथ, एंड दे हैव बॉडी के अंदर दे हैव टू कम आउट ऑफ सम प्लेस. सो नोज, ईयर्स, माउथ इज अ कॉमन एरिया, बट आफ्टर दैट दे मेक देयर ओन वे टू कम आउट ऑफ द बॉडी. So this openings which you see, it is a tear. It is not a clear-cut split. Clear-cut stab injuries, penetrating injuries. So she said, "Why do you say that?" I said, "Ki look at the margins.
इट इज़ नॉट शार्प, इट इज़ टेयर. किसी चीज़ को बाहर आया है, वो फाड़ के आया है वो. बराबर, हाँ हाँ. तो इस आप जब वो मार्जिन देखोगे आपको समझ में आएगा. इफ इट इज अ स्टैब इंजरी, इट हैज क्लियर कट मार्जिन्स बिकॉज ऑफ विच यू कैन से हाँ दिस इज अ केस ऑफ स्टैब इंजरी. सो वो चीज़ आप लोग को समझना है, वो चीज़ उनको समझाना बहुत मुश्किल पड़ा था. दिस इज वन केस. देयर वाज वन मोर केस वेर इन पोस्टमार्टम लिविडिटी. बैक में पूरा पोस्टमार्टम लिविडिटी है. रिलेटिव्स आ गए, बोले सर ये पक्का किसी ने इसको मारा है. हाँ. आप रिपोर्ट में यही लिखना कि मारा है एंड दिस आर कंट्यूजन्स. हाँ. बोला आई कैन नॉट राइट लाइक दैट. अच्छा. दिस इज नॉट पोस्टमार्टम, दिस इज नॉट कंट्यूजन, दिस इज पोस्टमार्टम लिविडिटी. नो 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 सर, देखो लाल है, all the things that you see of a contusion, Right. you know, when you fall from a bike and you know यहाँ पे scratches हो जाता है, you know, या crush लग जाता है यहाँ पे, जो भी दिखता है वो वैसा एकदम से मैं लगा. बोला नहीं. So I had to differentiate them and show them कि this is actual postmortem lividity. If it is a contusion, it will look in a different way, or the color will be different. The underlying skin का color will be different. बराबर, हाँ. And I had to make them understand. So this is what layman doesn't understand. As soon as they see some openings, as soon as they see some color discoloration over the body, they might think it that you know कि something wrong has happened with my relative. And I understand that there are psychological issues, but then you have to give a scientific answer, and the public has to understand कि यार every time whatever they say is not right. So you have to rely on an expert to understand कि यार whether this is the thing that has really happened, Right. or is it something else. तो ये आपके केसेस जो आपको Yeah. याद है. ओके सर, डू यू थिंक जो मर्डर्स करते हैं, जो मर्डरर्स होते हैं, डू दे सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू? Not all of them. ओके. Not all of them are you know affected या childhood memories है, या you know कुछ तो मेरे साथ childhood में हुआ था, अब्यूज वगैरह. abuse हुआ था, तो मैंने वो उसमें you know movies get you see in any movie, you know लोग बताते कि in the past 1986. So it is not always like you know कि someone has already planned something. There are people, I'm not saying कि it is not there. So when you see a murder, stages of murder, yeah, elements of murder, you know, there is a person who is an accused. He might have planned it. पहला चीज तो intention, कि मेरे में intention नहीं क्या. If I want to kill Mr. X, ठीक है, तो मैं वो पहले से intention कर रहा हूँ क्या उसको मारने का. फिर मैं क्या करूँगा, अगर intention है तो मैं planning करूँगा कि यार इसको मेरे को इस दिन में इस टाइम पे मेरे को करना है. ठीक है. बट नॉट एवरी टाइम दैट इज द केस कि हाँ भाई मैंने इंटेंशन के साथ में आया. हाँ. अब मैं अच्छा खासा गाड़ी में जा रहा था, हाँ. ठीक है, आई एम गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हुए बीच रास्ते में कुछ तो मेरा गाड़ी किसी को ठोक दिया. वो बाहर आया, मैं बाहर गया, वो मेरे से बातें करने लग गया, इधर उधर की बातें, गाली गलौज शुरू हो गया. उसने मेरे को एक मारा, मैंने रिटर्न में मारा. ठीक है, उसने अपने हाथ में, उसके हाथ में कुछ तो मिला, उसने लेके मार दिया. अब उसके हाथ में स्टंप मिल गया, वो क्रिकेट खेलने जाता था, उसके हाथ में स्टंप था, उसने लेके मार दिया और मेरे छाती पे लग गया, हार्ट पे. एंड देन आई डाई देयर. डिड ही कम बाय प्लानिंग इट फ्रॉम हिज हाउस कि आज तो मैं डॉक्टर फिल को मारूंगा, रास्ते में इस पॉइंट में मैं मिलूंगा और इस पॉइंट में मैं उसको स्टंप से मारूंगा. डिड ही प्लान फॉर दैट? नो. सो इट इज नॉट दैट. Always a person plans for it. There's something called as culpable homicide. ठीक है ना. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, you never plan for it. घर से निकलते 8:30 का लेक्चर है, 8 बजे 8:15 को हम घर से निकलेंगे. ओके, जहाँ पे 45 मिनट्स का डिफरेंस होगा. वी हैव टू रीच फ्रॉम कामोटे टू DY फॉर एग्जाम्पल. सो कामोटे से यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 20-25 मिनट्स लगता ही है अगर खाली रोड है तो. अगर बीच में खारघर में अगर समझो ब्लॉक मिल गया तो बात अलग है. तो अगर मैं 20-25 का हाँ मैं 15 मिनट में कवर अप कर दूंगा बोल के 8:30 का क्लास के लिए 8:15 को अगर मैं निकलता हूँ, ठीक है ना, और बीच में कुछ गड़बड़ हो गया तो
समझ में आया, और किसी को ठोक दिया मैंने, हम्म वो यहाँ से आ गया लेफ्ट राइट, कोई भी आजकल इंडिकेटर के बिना किसी ने लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया, यू वर ओवर स्पीडिंग, आई वॉज ओवर स्पीडिंग 80-90 के स्पीड में, ठीक है, सडनली ब्रेक लगाया, लगा नहीं, उसको लग गया, ही डाइड ऑल ऑफ अ सडन. तो डोंट यू थिंक दैट इज अ कल्पेबल होमिसाइड? इट वाज नॉट अ प्लान्ड थिंग. हाँ समझ में आया? आई नेवर इंटेंडेड फॉर दिस थिंग. सो नॉट एवरीवन हु इज कमिटिंग अ क्राइम हैज एन इंटेंशन टू कमिट दैट, बट वो हो जाता है, झगड़े में हो जाता है. So that has to be proven, disproven. So not all murderers will have some kind of psychological illness, but yeah, some people, few people will have a past. Not always. Yes. ओके सर, आप जब ये सब केसेस हैंडल करते हो, यू मस्ट हैव टू गो टू कोर्ट, Yeah. तो हाउ डू यू हैंडल दोज कोर्ट प्रोसीडिंग्स? See, before saying anything about this, I just want to tell to every listeners who is a doctor, ठीक है ना, कि आप जब कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट लिखते हो या आप मेडिकल रिपोर्ट्स लिखते हो, नोट्स लिखते हो, आफ्टर सीइंग अ पेशेंट, make sure you write everything, whatever you have seen on the patient. There are times when you just talk, the patient tells you many things, but from that only few things you write, which is relevant. Okay, तुमने relevant चीजें लिखा, but there are times that you might forget what the person said, because a doctor will be seeing multiple patients. Understood? So there are chances that you might forget it. But then and there itself, if you start writing, there are chances that negligence होने का chances कम हो जाता है. नेग्लिजेंस नहीं होने के लिए तो हम लोग सब ट्राई कर रहे हैं ना. तो अगर समझो नेग्लिजेंस हो जाता है, वो ना होने के लिए हम लोग जब पेशेंट देख रहे हो तभी के तभी आप वो चीज़ लिख दो. समझ में आया? सो वो चीज़ होने के बाद में क्या होता है, इट इज़ योर केस, है ना. सी, आई हैव सीन मिस्टर एक्स, so he is my patient, what I have written in his file, it is my thing, I have written it, you can justify it. But before presenting it in the court, ठीक है ना, I should go through, if this is the file, ठीक है, I should go through each and every page in detail कि मैंने ये चीज़ लिखा क्यों था, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा पता नहीं चलेगा आपको. समझ में आया? So if you are seeing that on 31st or 30th of November, okay, or 1st of November, you have seen a patient, the case 2024 में, the case might come in the year 2028 or maybe 2034, almost 10 years after down the lane. So 10 साल के बाद में आपको क्या याद रहेगा कि आपने क्यों लिखा. बराबर. हाँ तो अगर आप वो रिवीजन करते हो, जस्ट लाइक हाउ यू डू इट बिफोर गोइंग फॉर एन एग्जाम, अब ब्रश अप, फाइल निकालो, पूरा पेजेस देखो, हर एक पेजेस देखो कि तुमने जो लिखा है उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस तुमने क्या क्या कलेक्ट किया. ठीक है. सो अगर वो चीज़ है तो फिर डरने की कोई बात नहीं. इन अ कोर्ट व्हेन यू आर गोइंग, दिस इज व्हाट आई डू, एनी केस दैट आई हैव डन, वेदर इट बी पोस्टमार्टम, सेक्सुअल असॉल्ट और टॉक्सिकोलॉजिकल केसेस, I go through it everything, go through the evidences that I have done, each and everything, and then I go and present it. They might ask me anything. ये आपका साइन है क्या, ये आपका नाम है क्या, आप अभी कहाँ पे हो, ये आपको लगता है क्या रिपोर्ट आपने, लास्ट में ये भी बोल सकते कि आपने केस नहीं किया है करके बोलते ही अपना दिमाग खराब हो जाता है. एंड देन यू लाइक, तू कैसे बोल सकता है, मैंने फ्री में थोड़ी किया है. समझ में? क्यों गुस्सा होना है? बी पोलाइट, बी साइलेंट एंड टेल देम आई डू नॉट एग्री विद वट एवर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द डिफेंस लॉयर इज सेइंग. देयर विल बी टाइम व्हेन दे टेल यू कि जस्टिफाई योरसेल्फ, you justify yourself. Okay, otherwise you do not have to jump and argue and justify yourself. नहीं, मैंने देखा था, ये मेरा साइन है, मेरा नाम है. Understood? These are the things that you will have to understand. Recent one of the cases that I saw 1 month back, एक डॉक्टर है एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में मुंबई से, उसके ऊपर 2014 में नेग्लिजेंस का केस डाला था उसकी एक पेशेंट की वाइफ ने, आफ्टर अ सर्टेन सर्जरी. एंड दे सेड कि सर्जरी के पोस्ट द सर्जरी द पेशेंट डेवलप्ड इन्फेक्शन, गैंग्रीन, एंड द पेशेंट कोलैप्स्ड एंड डाइड. So initially the tribunal court said that
the doctor is negligent and he has to pay 50% of the amount of the total bill. Okay. Okay. The doctor said no. Hmm. I will go to the higher court. He went to Bombay High Court Huh. and there he put the case. Hmm. And recently in 2024, maybe a month back, not more than that, a month back, उसको justice मिला है कि जो भी वो डॉक्टर ने किया है, he has supporting evidence for the same. The infection or the gangrene which is formed, that was not post the surgery, it was already there, for which he has report for the same. Okay. सपोर्टिंग रिपोर्ट समझ में आया. हाँ. सो पैथोलॉजी देखो कितना अच्छे से रोल कर रहा है. तो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उसके पास था स्टेटिंग दैट कि यार ये इन्फेक्शन पहले से ही था, प्री सर्जरी ही था, पोस्ट सर्जरी नहीं. उस वजह से वो डॉक्टर का कॉम्पनसेशन जो उसको पे करना था वो नहीं देना पड़ा. बट जस्ट इमेजिन वो 10 साल 2014 से लेकर 2024 तक कितने सारे पेशेंट, बिकॉज ही इज अ सर्जन, कितने सारे पेशेंट उसके पास जाने से डर गए होंगे. जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ दैट पेशेंट, ऑफ द डॉक्टर. आई एम नॉट सेइंग कि यू नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू गेन सम सिंपैथी और समथिंग थ्रू दिस वीडियो फॉर हिम, एंड आई एम टेलिंग कि ये 10 साल इज अ बिग टाइम. हम 6 महीना नहीं रुक सकते ना, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं. 10 साल के लिए ही वॉज इन दैट हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट ही हुआ ना एक तरह से, कि वो चीज़ वो कर नहीं पा रहा था, वो प्रूव नहीं कर पा रहा था. And now he has got justice. Understood? So I am telling you कि आप जब भी कुछ करते हो ना, तो उसका इतना सपोर्टिंग एविडेंस क्या क्या लेके रखो कि कल के दिन में क्वेश्चन अगर 10 साल बाद भी कोई नेग्लिजेंस डालता है ना, देयर इज लिमिटेशन फॉर नेग्लिजेंस टू बी पुट अप. इट इज नॉट लाइक 10 years के बाद में डाल सकता है. बट देन अगर क्वेश्चनिंग आता है, तो अगर ये सपोर्टिंग एविडेंसेस आपके पास में है, यू डू नॉट हैव टू वरी, है ना. This example which I have given is the best example that I give. I have given this to students also. कि यार, see that it is not always that you will be held up negligent. There are chances that you might disprove it also. But for that you will have to have an answer for the same, to disprove yourself, to prove that you are not guilty. That was really very insightful. आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है. पर्सनल नहीं है बट आप जब भी ऐसे कोई हाई प्रोफाइल केस अगर आपने कोई हैंडल किया कर रहे थे, तो आपको कभी कोई थ्रेट्स मिले ऐसे, लाइक? मेरे को नहीं मिला है एज पर्सनल, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन. मेरे को पर्सनली नहीं मिला है, बट मेरे सीनियर्स को मिला है और मिलते आता है. डेथ थ्रेट्स इन द सेंस, नॉट डेथ थ्रेट्स, धमकियाँ, लाइक यू नो, तुम्हारी बेटी, तुम 7 बजे कॉलेज से निकल जाना, तुम्हारा गाड़ी का नंबर ये है ना, ऐसे करके. एंड देन पॉलिटिकल पार्टीज का, लोकल पॉलिटिक्स आल्सो. सो ये सब इश्यूज आते ही है. यू नो, फ्यू ऑफ द केसेस वेयरइन व्हिच वाज वेरी हाई प्रोफाइल, जिसने भी वो पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है, दे डोंट इवन कम फॉर फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल. अच्छा. हाँ, दे हैव स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज आएंगे तो हम तो बैठे ही खूंखार बन गए कि भाई बता क्या किया था. दे डोंट वांट टू आंसर इट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज बेसिकली. दे डोंट आंसर कि कौन कब कौन सा चीज रिकॉर्ड कर देगा. हाँ, लेकिन दैट मस्ट बी टेकिंग अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ ना, लाइक ऐसे थ्रेड्स है, प्रेशर रहता है पूरा टाइम. 100%. डू यू थिंक मीडिया हैज एनी रोल टू प्ले during investigations? Yeah, because most of the time they give a wrong report according to the public review. But it is not that कि वो public ने जो बोला वो सही होना ही चाहिए, है ना. तो वो चीज़ समझ के मीडिया अगर वो चीज़ करेगा तो उसमें क्या हो जाता है ना, लोगों का एक माइंड सेट बन जाता है कि हाँ वो उस बंदे ने ऐसा बोला था इसलिए उसको मिला है, या उसके साथ ऐसा ही होना था, या दिस आर द थिंग्स. समझ में आया. फॉर एनी एक्टर और एनी पॉलिटिशियन, फॉर एनीवन, मीडिया प्लेज अ मेजर रोल टू deviate one's thought about some person, one's idea about a person, and then it can be negative or positive. It can go in either ways.
but then it is us, we have to decide what we need to carry and what we have to. So मुझे क्या चाहिए, what is needed for me, I just accept it, है ना. So from media also it is the same thing. न्यूज़पेपर में 10,000 चीज़ें लिखा है, बट उसमें से क्या ये रिलेवेंट है, that has to be understood and that has to be followed. And if you do that, you become a prudent man, knowledgeable and prudent. Yes. Now let's shift gears and raise our coffee mugs to the topic of alcohol. Cheers. Cheers. Alcohol has a way of making people do things they'd never do sober. So, Dr. Phil, let's talk about the science behind when people are under the influence of alcohol. Especially आजकल ज़्यादा accidents under the influence of alcohol या other drugs के वजह से हो रहा है. So, do you think it alters the decision making skills of a person while they are under the influence, or, Yeah, it and does. how does it actually It does. It does affect the, you know, the controlling of the faculties of your body. For starting from your brain to your upper limb to your lower limb, you know, affect करना ही है. अगर तुम लोगों को दारू नहीं पी के affect नहीं करना है, then drink water. Because alcohol affect करता ही है. देखिए, how does it affect is there are stages. So, you know, any alcohol that you take, it takes a minimum of 30-45 minutes to affect your faculties or functioning of your body. So 30-40 minutes के बाद में you start, you know, sweating और फिर slurring, फिर बात थोड़ा सा swaying होने लगता है, you know, all those things. 30-40 minutes के बाद में वो चीज़ तुम्हारे brain में और blood में enter कर लेता है. And after that 30-40 minutes के बाद में the stage of excitement. ये stage of excitement में क्या है ना कि everyone wants to maintain that stage of excitement. They don't want to lose, like, you know, they don't want to be lost. या pass out नहीं होना. Pass out नहीं होना है, kick नहीं होना है. But they just want to keep that stage of excitement for a long period of time. So because of that, they keep adding 30, 60, 90, quarter, whatever they prefer. So, you know, they start drinking. And at a certain point, they, you know, they are lost. किक लग जाता है उन लोगों को. तो वहाँ पे उस स्टेज में क्या होता है, they lose faculty का जो functioning है, functioning of the faculties, and then they end up doing something wrong. So most of the time, these people, what happens is in the stage of excitement, they start saying कि चलो, you know, कुछ करते हैं. कभी किसी लड़की को प्रपोज मारते हैं, या किसी को जाके मारते हैं, या गाड़ी चला के अभी चलो लोनावाला चलते हैं, या महाबलेश्वर जाते हैं, ड्राइव करते करते ड्रिंक करते हैं. You know, ये सब करते वक्त we should understand it is affecting your faculties. And वो judgment लेने में ना बहुत time लग जाता है. There can be chances that, you know, you might get blurred vision. There might be chances that, you know, you might feel, you know, like मैं slow जा रहा हूँ, but at the same time there is no control over your leg. You might be over speeding. समझ में आया? And there might be chances कि कोई गाड़ी तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हें जजमेंट लेने में ये हो जाता है कि भाई मैं लेफ्ट लूँ कि राइट लूँ. But normally you could have controlled that thing. ठीक है, तो वो चीज़ होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है after you are under the influence of an alcohol. So 100% alcohol does affect your faculties. Even if you say that it is, you know, stimulating me, you know, हम लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नेरुल में बैठ के मैं दारू पी रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी चलो रात को 1 बज गया है, क्या करना है, चलो मेरे को फूड मॉल से मेरे को चाय पीना है, ठीक है ना, गुड़ का चाय पीना है मेरे को, चलो. और रात को 4-5 दोस्त को गाड़ी में बिठा दिया, सब सो रहे, सब लोग बोल रहे भाई नहीं होगा, मतलब मैं भाई गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. समझ में आया? सो एंड देन मैं ट्रैवल करके लेके जा रहा हूँ, बट इट इज़ अ रिस्की थिंग. यहाँ से मेरे को जो भी पास कर रहा हूँ, बीच में अगर कुछ भी आ जाता है एट दैट टाइम एंड आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स और कंट्रोल माई इमोशंस, तो मैं कहीं पे भी जाके कुछ गड़बड़ करके आ सकता हूँ. अंडरस्टूड? इट 100% अफेक्ट्स योर फैकल्टीज. तो रिफ्लेक्सेस भी कम, मतलब ये हो जाते हैं, या तो हाइपर हो जाता है या हाइपो हो जाता है. तो वो होना ही है. इवन इफ दैट इज कॉल्ड एज अ स्टिमुलेंट, इट इज एक्चुअली नॉट अ स्टिमुलेंट, इट इज डिप्रेसिंग ऑल योर faculty members of your body. body. Yes, it does affect.
सर तो कोई अगर कोई केस आपके पास ऐसा आया कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुई हो बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो हम क्या करते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ फिर? Normally, there are two tests which can be conducted. One is your urine test, and then another one is your blood. Because alcohol is a volatile substance. So volatile होने के वजह से क्या होगा ना कि जितना उसने कंज्यूम किया है, समझो 7:30 PM को बैठ गया, फ्रॉम 7:30 to 9:30 तक उसने पिया, ठीक है, 7:30 to 9:30 के बीच में उसने यूरिनेशन भी किया है, हो सकता है देयर आर चांसेस दैट ही माइट हैव डिफिकेटेड आल्सो. सो अल्कोहल लेवल जो उसके बॉडी में कंज्यूम किया था वो थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, सलाइवेशन, फूड, देन यूरिनेशन, डिफिकेशन. सो माइट बी चांसेस कि 9:30 को उसने स्टॉप कर दिया एंड देन ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही पास्ड ऑफ और ही डाइड, और या फिर ही इज एन अक्यूज्ड इन दिस केस, और वो आया आपके पास में 1 बजे 2 बजे रात को या मॉर्निंग 7 o'clock को. तो इतने देर में पूरा वॉलेटाइल सब्सटेंस, अल्कोहल वॉलेटाइल होने की वजह से वो बॉडी में उतना नहीं रहेगा जितना उसने कंज्यूम किया है. सो इट डजंट मीन कि उसने कंज्यूम ही नहीं किया है. उसने 90 कंज्यूम किया था या क्वार्टर कंज्यूम किया था, बट जब तुम्हारे पास में ओनली 30 ml का या पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहा है, यूरिन टेस्ट में इट शोज इट पॉजिटिव नेगेटिव. नाउ यू वांट टू नो हाउ मच डिड ही कंज्यूम. That answer you will get when you are doing an alcohol test. अल्कोहल टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ तो उसमें क्या है, जितना उसने लिया उससे कुछ परसेंटेज कम रहेगा, बट यू विल गेट एन आंसर फॉर द सेम. सो इफ ही हैज टेकन अ क्वार्टर, might be chances that there is only 90 or 100 ml present in his blood, but you can give them an answer कि हाँ भाई इससे प्लस माइनस 100 ml का है या ब्लड में इतना परसेंटेज मिला है. सो दिस इज व्हाट यू कैन आंसर फ्रॉम द ब्लड, नॉट फ्रॉम द यूरिन. ओके. बट जब अभी तो दिवाली का टाइम था, तो हम जब गाड़ी में निकले थे तो सब जगह ब्रेथ एनालाइजर वाले पुलिस सब खड़े थे, वो वाला ये that only gives you an idea about whether he has consumed alcohol or not. अच्छा, वो It doesn't परसेंटेज give- नहीं बता. yeah, it doesn't give you an idea कितना पिया है उसने. अब मैं 1 ग्लास वाइन लेके जा रहा हूँ, that is also giving you a positive. If I take a full bottle, अच्छा. पूरा बॉटल वाइन का मैंने पी के फिर मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम नेरुल टू मुंबई और टू दी एयरपोर्ट और टू XYZ प्लेस, तो उसमें सिर्फ ये दिखाएगा कि भाई ने अल्कोहल पिया है. कौन सा पिया है, क्या पिया है, वो मेरे ब्लड में ही मिलेगा आपको. You won't get it even in my urine. Understood? So that is one thing. This breath analyzer will only give you an idea whether that can give even a false positive. अच्छा. Like you take Chlormix. You know what is Chlormix, right? Okay, you mouth freshener, Mouth liquid wash. mouth wash. अच्छा. The उसमें भी पॉजिटिव आ सकता है. false positive आने का chances है. अरे बाप रे. हाँ. So one has to be careful कि वो क्या लेके फिर बाद में स्टार्ट कर रहा है. That can even give a fall. There are multiple things in game. One of this is mouthwash. It to can be give a careful. false positive. Yeah. कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है क्या ऐसे अल्कोहल के जो आपको पब्लिक को बताने हैं? Long term, see, I'll tell you one thing. All this, अगर आप ये सोच रहे हो कि अल्कोहल में देर इज यू विड्रॉल सिंड्रोम या फिर मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकल सकता, ऐसा कुछ नहीं है. इफ अ पर्सन हैज डिसाइडेड दैट आई डू नॉट वांट टू ड्रिंक, आई डू नॉट वांट टू स्मोक, आई डू नॉट वांट टू चू टोबैको, या मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं है, उसके विल पावर पे है पूरा. ठीक है. सो माई सीनियर्स आर देयर, आई नो फ्यू पीपल हु हैव स्टॉप्ड इट कम्प्लीटली. नहीं चाहिए. व्हाट बेनिफिट इज इट मेकिंग? Is it giving you some kind of positive thing or a negative thing? No. At the end of the day, it affects your organs and then you eventually collapse and die. तो वो होने से अच्छा है भाई मैं स्टॉप कर दूँ. हाँ, मेरे को जब एंजॉय करना था मैंने एंजॉय किया. When I was young, I was of this age, between this age to this age. मेरे को ज़िंदगी में जो ट्राई करना था. There are many people जो बोलते भाई मैंने सब ट्राई कर लिया, अब मेरे को बस हो गया. So it is all on your will and desire whether you want to continue it or not. If I am saying that I don't want to do it, I don't want to do it. ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रग डिपेंडेंसी हो गया भाई मेरे को, इसके बिना मेरे को तो होगा नहीं.
ऐसा तो कुछ भी नहीं है. You can easily move on, easily. मेरे को like I said to my class also, like आपको अगर X भाव नहीं दे रही है तो there will be someone else who is giving you भाव, तो उसके साथ जा सकते. there is an option. So अल्कोहल पे मेरे को अल्कोहल लिए बिना मेरे से नहीं होगा, ऐसा तो है ही नहीं. You can always have an option and it is all on your will that you want to come out of it. You can easily come out of it. Yes. ऐसा नहीं है कि हम इसी पे डिपेंडेंट है कि भाई मेरे को ये मिले बिना मेरे से काम ही नहीं होगा. ऐसा तो है नहीं. दैट अल्कोहल जो डिपेंडेंसी हम दिखाते हैं ना, इट इज टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. राइट. मेरे से मेरी बीवी बात नहीं कर रही, मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, मेरा काम बराबर नहीं जा रहा है. सो चलो वो मोमेंट को पार करने के लिए मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, बट अल्कोहल लेने के बाद में मेरे को कोई सोल्यूशन मिल रहा है. तो इफ आई वांट टू नेक्स्ट डे मेरे को अगर काम करना है तो मेरे को तो काम करना ही है. समझ में आया? ऐसा तो नहीं है कि मैं काम नहीं करूँगा तो आई विल गेट सम सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट. नो. जो सोबर माइंड में या क्या बोलते हैं साउंड माइंड में हम जो करेंगे, दैट यू विल नेवर गेट व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अल्कोहल. Right. Okay. All right, sir. Moving into a आई डोंट. more sensitive area. Let's discuss the role of forensic medicine in cases of sexual violence. Recently, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो केस हुआ था इन कोलकाता, यहाँ पे it was basically highlighting both जो victim के साथ हुआ as well as जो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे उनके साथ भी जो असॉल्ट वहाँ पे हुआ था, कि मॉब्स आए थे एंड उन पे अटैक हुआ था. ये सब के बारे में आज अभी हम बात करेंगे. हाईलाइटिंग द रेप केस राइट नाउ. जब कोई रेप सर्वाइवर आता है या आती है, उस सबसे पहले उनका साथ हम क्या करते हैं एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट? See, one thing that we do is taking a consent. Consent is a very important thing, whether a medical case or a medico-legal case. Consent plays a major role. Consent में क्या है? पहला चीज, informed consent whether the person is saying yes for all the examination that you are going to conduct. And there is another one more thing, that is refusal. The person can also refuse for the examination. ठीक है? तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यार एग्जामिनेशन किए बिना मैं जस्टिस कैसे लाऊंगा, है ना? मुझे एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पड़ेगा. इट इज ऑल ऑन यू. यू हैव टू काउंसिल द पर्सन कि यार मैं ये एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं ये सर्जरी परफॉर्म क्यों कर रहा हूँ. इज देयर एन ऑल्टरनेटिव फॉर द सेम? ठीक है ना? लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली होके गया हमारे यहाँ पे, है ना? तो दिवाली के पहले कोई पेशेंट आपके पास में एब्डोमेन पेन के साथ में आ जाता है. यू कम टू नो दैट पेशेंट इज हैविंग appendicitis or a hernia for which a surgery has to be conducted. Now at the same time he is telling you कि यार मेरे को अभी ना गांव में जाने का, दिवाली के बाद में मैं आऊँगा, फिर सर्जरी करते. कैन यू डिले दी सर्जरी? कैन यू से दैट देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, मेडिकेशन दे के मैं कर सकता हूँ? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ डॉक्टर, कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, मैं डिले कर सकता हूँ, मैं उसको बोल सकता हूँ कि नहीं एक और ऑप्शन है आपके पास में. या फिर मैं ये बोल सकता हूँ ठीक है आप कहाँ जा रहे हो, वो बोलेगा मैं पुणे जा रहा हूँ, मैं XYZ प्लेस में जा रहा हूँ. क्या आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पे जो सर्जरी वहाँ पे परफॉर्म, लाइक यू नो सम पीपल गो टू देयर होम टाउन फॉर अ मंथ, फॉर 2 months, वो वापस नहीं आएगा. तो आप ऑल्टरनेटिव उसको दे सकते हो ऑप्शन कि वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, वहाँ पे आप सर्जरी करा लो. या फिर ठीक है 1 महीने बाद में आओगे, लेकिन तब तक आप मेडिकेशन लेते रहना ताकि आपको पेन ना हो. समझ में? इज देयर एन ऑल्टरनेटिव फॉर द सेम? इफ इट इज देयर देन प्रोवाइड इट टू हिम. अंडरस्टूड? सो कंसेंट plays a major role in that. So consent, whether it be medico-legal case or medical case, accused or victim, you have to take the consent of the patient. You cannot just tell him कि हाँ sexual offense का case है, तो you know I have to examine each and every part of your body, so remove your dress, I need to examine for injuries. So वैसा अगर आप करते हो तो you are assaulting the patient. एक टाइप में आप assault कर रहे हैं. assault के लिए मेरे को मारने का ज़रूरत नहीं है, असॉल्ट के लिए मैं थ्रेट भी कर सकता हूँ. समझ में आया? सो इवन अ थ्रेट ना, दैट इज अ थ्रेट. आई एम ट्राइंग टू टेल हिम और हर कि अपना कपड़ा निकालो, आई नीड टू
एग्जामिन फॉर इंजुरीज. क्यों? जब वो कंसेंट ही नहीं दे रहा है तो फिर क्या? समझ में आया? तो पहला चीज मैं कंसेंट लूंगा. कंसेंट के बाद में आई विल टेल हिम, एक्सप्लेन हिम कि ये जो मैं एग्जामिनेशन आपके ऊपर करने जा रहा हूँ इस वजह से दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एग्जामिनेशन और दिस आर द प्रोडक्ट्स. समझ, रिजल्ट ये होगा. समझ में आया? उसके बाद में मैं एग्जामिनेशन करूंगा. आई विल कंडक्ट ईच एंड एवरीथिंग. उसमें द सेम थिंग एज आई टोल्ड यू इन अ मर्डर केस और इन अ हॉस्पिटल केस, इन अ मेडिकल केस, you have to collect all the evidences that is necessary or pertaining to that case. अगर आप वो चीज़ लेते हो एंड देन आप वो चीज़ एग्जामिन करने के लिए फॉरवर्ड करते हो, देन फिर आपको कोई टेंशन लेना नहीं है. लेकिन हाँ, वहीं पे एक पेशेंट 1 महीने बाद में आता है तो एग्जामिनेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू वोंट गेट एनी एविडेंस, सैम्पल्स. बराबर. बट हाँ, तुम इंजुरीज वगैरह है तो दिखेगा, वरना आपको इंजुरीज. बट जस्ट बिकॉज इंजुरीज और एविडेंसेस आर नॉट देयर डजंट मीन अ रेप हैज नॉट बीन कमिटेड if it is a genuine case. See, people have come to know about this section 375 or 63 of BNS, ठीक है, and because of which people have started misusing it because of POSH Act, Vishaka guidelines, ठीक है, workplace में sexual harassment and all these things, people have started misusing it. And because of which what has happened, a genuine case is underlined कि उसको पता ही नहीं चलता कि भाई एक genuine case है या नहीं. ठीक है ना? तो वो चीज ना होने के लिए पीपल हु आर मिसयूजिंग इट हैव टू अंडरस्टैंड इट कि हम ऐसा मिसयूज करना जरूरत नहीं है. देन दैट दोस केसेस हैव्स टू बी लाइक मेड अंडरस्टूड और अ जजमेंट हैज टू बी गिवन फॉर द सेम. So that is one thing that when it comes to us, these are the things that we keep in mind. If it is a genuine case, recent case, and all the evidences have been collected, and wherever it has to be forwarded, it is forwarded, and an opinion has to be given related to the same. If it is an accused case, then the person, can he perform a sexual intercourse or not? And if it is a case of victim that we are examining, then we come to a conclusion whether a recent sexual intercourse has been performed on him or her or not. So this is what the answer has been given. So we examine the accused as well. Yeah. It has to be done, and it has to be done in the same center, but not that both the accused and the victim come in the same car. Most of the time this happens. अच्छा. Okay, previously also it was happening. So this has to be stopped. कि अगर समझो विक्टिम और एक्यूज्ड एक ही वैन में आ रहे हैं जस्ट बिकॉज, तो फिर देयर आर टाइम्स दैट ही माइट टर्न टू हर एंड सेड कि वहाँ पे जाके कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो थ्रेट होने का चांसेस है. तो वो चीज़ ना होने के लिए इफ बोथ द इंडिविजुअल्स एक्यूज्ड एंड द विक्टिम इफ दे कैन बी ब्रॉट इन सेपरेट वैन्स और कार्स, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. बट सी टू इट दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एज सून एज द पर्सन इज ब्रॉट टू यू. Okay. Any personal cases that you have dealt with relating to rape? Yeah, so many. आपको कोई ऐसा याद है? Recent हो सकता है यार. Recent में मैंने जो cases most of the cases that I have seen, 99% of the cases. तो उसमें जो चीज़ देखा गया था वो most of the cases are consensual sexual activity. अच्छा. That is they both know each other, girlfriend, boyfriend, known people. ठीक है, ये चीज़ें मोस्ट कॉमनली है. बट इसके अलावा भी देर आर चांसेस व्हेन रिलेटिव्स अब्यूज अ यंगर वन. ये भी होता है. ठीक है, और ये भी होता है लूरिंग के वजह से. लाइक ड्राइवर है, उसको बोलता है मैं चॉकलेट दे दूंगा. ठीक है, ऐसा भी केसेस हमने देखा है. हॉस्टल में रहता था. आई एम नॉट टेकिंग एनी प्लेस और वेयर इट हैज हैपेंड, बट आई विल टेल यू अ story by taking an example. Like an ex-person who was below 17 years of age was staying in a hostel. So hostel में रह रहा था, तो वहाँ का जो hostel warden था वो क्या करता था, every evening after food, post dinner, he used to call this boy to his room and used to have sexual intercourse with him and all that. So the small boy came to know that ये कुछ wrong हो रहा है मेरे साथ. Okay,
So then he started escaping from that situation every evening. तो एक दिन इनको पता चल गया, the warden came to know कि यार ये मेरे से escape कर रहा है, he is not coming to me. So they started searching for him. One day they started searching for him. So they found out that he's trying to hide himself in an isolated place in the terrace, which doesn't have a fencing. Fencing wall नहीं है. अब एक ने उसको पकड़ने के लिए जैसे ही गया तो उसने क्या किया, उधर से जंप कर दिया. And the body came to us. Now when the body came to us, young boy 17 से भी लेस है, ठीक है. अब इसने सुसाइड क्यों किया रहेगा? क्वेश्चन आ रहा है, इसने सुसाइड क्यों किया रहेगा? तो हमने उसके बॉडी को पूरी तरह से एग्जामिन करने की कोशिश की. When we examined, we came to know that the anal sphincters are so much relaxed कि जो नॉर्मली होने से कहीं गुना ज़्यादा. तो ये तो नॉर्मली नहीं है. Anal sphincter relaxes after death, but not this much. Then on investigation, we came to know that this is what is happening in the hostel. And then a justice could be given to that young chap. That's what I believe, this is what is happening. So ऐसा नहीं है कि every time an accused is a victim, or like I said about the murder case, कि मेरे साथ कुछ trauma मेरे past में हुआ था, तो I want to the others also to suffer the same thing. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है. And it is not that they are psychologically having some kind of mental illness or every time they are perverts. ऐसा भी नहीं है. Normal, educated, high class people are also into it, so we cannot class them or classify them. Yeah, this class of people are into it. This class of who are alcoholics and drinkers or who had a past are into it. ऐसा तो कुछ नहीं है. Anyone can do it, and this can be done on any individual. Now if you ask me who is safe, male or female में, तो ऐसा तो I cannot again distinguish तो कर ही नहीं सकता कि हाँ भाई we are more safe, females are less safe. ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता. आपने जो अभी बोला उससे तो बिल्कुल ही ये समझ आता है. So we cannot say that. We cannot come to a conclusion about that. Sir, do you think gestures, utterance of words play a role in outraging a woman's modesty? Yeah, it does. Like, for example, if I sing a song in public, or else when a girl is passing by, I whistle. सीटी बजाया बस, और कुछ किया नहीं. कोई जा रहा है, नहीं, सीटी बजा दिया. तो वो चीज़ अगर उसके लिए है और मैं इंटेंशन के साथ में करता हूँ, that becomes a crime. Okay, that is a sexual remark been done. Or if I am singing a song, like wanna be my chamak challo, समझ में आया? So it is, उसको क्यों करना है? वो लड़की पास बाय कर रही थी, उसके लिए मैं गाना गा रहा हूँ, उसको पसंद नहीं है, मैं गाना गा रहा हूँ, समझ में आया? So that can again become a sexual gestures, remarks. I'm using any kind of words, जैसे डार्लिंग, a case. So मैं डार्लिंग करके बोल देता हूँ, जहाँ की उसको पसंद नहीं है मैं उसको ऐसा वर्ड्स यूज़ करूँ, ठीक है. So that can become, or else if you have seen one movie was there of Akshay Kumar, where he uses a newspaper to touch the buttocks of a female. So if such kind of gestures have been done, wherein the female is not comfortable with it, nowadays we hug, we lay hands on male, females and all. जब तक सामने वाले को consent है तो प्रॉब्लम नहीं है. सामने वाले का कंसेंट नहीं है फिर भी तुम हाथ रख रहे हो and trying to feel his or her body parts or dress, that 100% becomes a offense, outraging the modesty of a female. Yes. So that is like an assault. Yeah, because you are touching without the consent. अब मैं दोस्त हूँ, मेरे साथ में एक फीमेल, one of my colleague who did MBBS with me or MD with me, she is comfortable with me.
यू नो मैं उसके ऊपर हाथ रख के फोटो के टाइम पे, या फिर व्हेन आई मेट आई हग्ड हर एंड आई केप्ट अ हैंड ऑन हर, तो शी डजंट हैव अ प्रॉब्लम. बट एट द सेम टाइम वन फीमेल फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज मीटिंग मी, और मेरे को बोला है फोटो लेना है या कुछ करना है, तो मैं उसके कंधे पे हाथ रख के मैं खड़ा हो गया, व्हेन शी इज नॉट कंफर्टेबल, तो देन 100% इट इज एन असॉल्ट ना. असॉल्ट के लिए there is not, it is not necessary that I have to physically abuse her. Okay. Even a threat, like मैं बोल रहा हूँ दू क्या है, और देखो डर लग रहा है, अरे समझ में आया, या मैं ग्लास लेके मैं बस ऐसे नाटक कर रहा हूँ, फेंकू क्या करके, तो मैंने फिजिकली फेंका नहीं है वो, या उसके अंदर का कंटेंट जो भी था मैंने फिजिकली तेरे ऊपर डाला नहीं है, बट मैंने एक्शन दिखाया है, जेस्चर दिखाया है मैंने, समझ में आया, तो वो उसमें आता है. या दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिमार्क, दैट इज कंसिडर्ड एज अ assault. Okay. It has not caused any injury per se, no, but मैंने एक एक्शन दिखाया, एक जेस्चर दिखाया, that is considered as a wrongful act. So just one more thing that I would want to ask you. Okay. How can doctors, जैसे हमने देखा आरजीकर जो कॉलेज में there was a mob attack on healthcare professionals. Okay. How can they protect themselves from violence? Are there any laws which can protect them against violence? There are laws, but not as such कि you know कि अगर डॉक्टर पे अटैक हुआ तो क्या, ऐसा नहीं है, बट हाँ असॉल्ट हुआ है, या थ्रेट भी हुआ है, या फिर इंजरी हुआ है, तो उसके लिए देर आर एक्शंस विच आर बीन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट, देर आर केसेस, केस लॉस रिलेटेड टू द सेम. बट हाँ प्रोटेक्शन का मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो यू हैव टू काउंसिल द पेशेंट एंड द पेशेंट रिलेटिव्स. क्लिनिकल साइड में जितने जन रहते हैं, इफ़ यू काउंसिल द पेशेंट, यू नो माई प्रोफेसर यूज टू से ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवरी करते हो आप, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि आप बोलते हो कि पेशेंट अच्छा है, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो कल आ जाएगा बाहर, और उसके बाद में 1 घंटे बाद में उसका डेथ हो जाता है. ओवर प्रॉमिस किया, तुमने वो चीज़ों को डिलीवर किया नहीं, तो फिर मॉब लिंचिंग होने का चांसेस है. तो व्हाट इज़ द बेस्ट आंसर दैट यू कैन गिव एज अ क्लिनिकल पर्सन, हुएवर रिसेंटली आप डॉक्टर्स बन रहे हो या आपको काउंसलिंग करने नहीं आ रहा है, योर सीनियर्स माइट बी नोइंग इट, HOD लेवल पे, या जो एक्सपीरियंस पर्सन है ही माइट बी नोइंग इट, बट नॉट एवरीवन विल नो इट. सो द बेस्ट आंसर दैट यू कैन गिव इज कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. सी साइंस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. It is not like you see that you know कि 2 + 2 is 4. Okay, so you play with medicines, you give them all the treatments, ठीक है, so it is a game of probability. So you cannot come to a conclusion कि मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सही जा रहा है. कभी कभी there are chances that कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाए, and there can be bad consequences of the treatment. So that doesn't mean कि तुमने treatment बराबर नहीं किया. बराबर. You took the standard protocol, you took the things that is being followed in a proper way, but that didn't work as it was being thought. Some act intervened in between and something wrong happened. समझ में आया? So at the same time you should understand कि there are other laws which are there that if in case समझो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आ जाता है और हॉस्पिटल में एडमिटेड है, रिलेटिव्स कोई नहीं, जिसने उस बॉडी को नहीं, जिसने भी उस विक्टिम को आपके पास में लाया वो भाग गया, बॉडी को तो छोड़ा, भाग गया, क्योंकि आज किसी को भी लॉ लीगल सिस्टम में इस पंगे में गिरना नहीं है, ठीक है, उस बॉडी को छोड़ा वो भाग गया. तो अभी प्रॉब्लम ये है कि इसको कंसेंट कौन देगा, और सर्जरी हैज टू बी परफॉर्म्ड ऑन लिम्ब. उसका लेफ्ट हैंड के ऊपर से टायर चला गया, क्रश इंजरी हो गया है, एम्पुटेशन करना पड़ेगा, ठीक है. अब लेकिन एम्पुटेशन नहीं करेंगे तो फैट एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है, गैंग्रीन फॉर्मेशन, ये सारे चीज़ों की वजह से उसका डेथ भी हो सकता है ना. तो आपको एम्पुटेशन करना ही है, तो अब सर्जरी के लिए कंसेंट कौन देगा, समझ में आया? सो आपने कंसेंट के बिना सर्जरी परफॉर्म कर दी, ठीक है. सर्जरी कैन बी गिवन बाय द हायर अथॉरिटीज ऑफ द हॉस्पिटल, लाइक अ डीन और एन MS. अच्छा, ठीक है, they can give, the consultant himself can give. Okay. ठीक है, later it can be taken. If in case the consent is taken later on, 2-3 घंटे बाद में सर्जरी
करने के बाद में रिलेटिव्स आए और तुमने कंसेंट उनका तभी लिया, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसेंट. हाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसेंट? बिकॉज यू परफॉर्म द एक्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट. गुड फेथ में आपने एक एक्ट किया, द डॉक्टर हैज डन एन एक्ट गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट. दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इनवैलिड कंसेंट और अ ब्लैंकेट कंसेंट और अ बैटरी कंसेंट और एन असॉल्ट टू द पेशेंट. समझ में आया? एक ग्रेटर हार्म होने से आपने क्या किया, एक स्मॉलर हार्म कर दिया, ठीक है, एम्पुटेशन कर दिया ताकि वो पेशेंट बच जाए. आज वो पेशेंट जिंदा है, वो मरा नहीं है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? पेशेंट जिंदा है, वो इम्पोर्टेंट है ना. तो वो चीज़ अगर वो डॉक्टर करता है तो देर आर 52 सेक्शन 52 IPC, 89 IPC, 92 IPC. These are sections which are in favor of the patient. I mean, patient favor of the doctor. The doctor has not done a negligent act. He has not done something wrong. He has done it for the benefit of the patient. Okay. So there are things. And after that, if in case an assault has taken place, ठीक है, तो वो असॉल्ट के लिए द एक्शंस कैन बी टेकन. एज सच कि मॉब लिंचिंग में ये पनिशमेंट होना चाहिए, पहले ऐसा नहीं था अभी. लेकिन लिंचिंग के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए BNS में देर आर सेक्शंस बीइंग गिवन, देर आर बीइंग पनिशमेंट्स बीइंग गिवन कि इफ इन केस मॉब लिंचिंग है उसमें कितना इंजरी, कितना ग्रीवियस इंजरी हुआ है, उससे रिलेटेड आपको पनिशमेंट दिया जाएगा. सो देर आर. Okay, sir. Are there any advancements जो globally use हो रही है but इंडिया में नहीं है अभी forensic medicine में per se, और जो आपको लगता है आएगी तो जो justice है वो जल्दी हम दे सकते हैं? Yeah. Vitropsy is one thing that is not practiced much in India. So virtual autopsy. That is like how MRI has been taken and then a conclusion has been given कि यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये वर्टिब्रल कॉलम में इस पार्ट पे प्रॉब्लम है. अगर वर्चॉप्सी शुरू हो गया ना, फायर आर्म केसेस को क्लोज करने को बहुत इजी पड़ जाएगा. ठीक है. बट वन प्रॉब्लम विद वर्चॉप्सी इज दैट कि वो महंगा रहेगा. फाइनेंशियली हर इंडिविजुअल वो चीज़ स्पॉन्सर नहीं कर पाएगा. बट एट द सेम टाइम विट्रोप्सी से एक बेनिफिट ये होगा कि डिसफिगरेशन होने का चांसेस या बॉडी, क्योंकि सी व्हेन यू आर डूइंग एन ऑटोप्सी फिजिकल वन, यू ओपन अप द बॉडी, द हेड, द थोरैक्स, एब्डोमेन, एवरी पार्ट वेर एवर इंजुरीज आर देयर. सो ये विट्रोप्सी से वो डिसफिगरेशन होने का चांसेस कम हो जाएगा. That is already a recorded one, so that can be used in further references also. But that is not an advanced thing that is being more commonly practiced. So if that comes into action or that comes into thing, then forensic will be next level. So I feel कि वो आना चाहिए. AI should be used. Artificial intelligence should be used, but not that ChatGPTs and AI should be used to make a postmortem report. Okay. Recently, when I was taking class for lawyers, so they were telling me here, Dr. Cherian, do you think कि AI is being used to prepare a autopsy report or a postmortem report? I said, sir, we can use that. आप AI अगर if you are well versed with it, AI या ChatGPT से you put what you want. You are saying I am an MBBS student, undergraduate हूँ, I want to write anatomy paper as it is written in MUHS. So they will give you the exact paper as you want. ठीक है. एंड प्रिंटिंग का हैंड रिटन जैसा भी करना है, हैंड राइटिंग वो ऑलमोस्ट सेम वाला भी दे देगा. एवरीथिंग इज अवेलेबल. बट देन देर इज नो जेन्युइनिटी, देर इज नो ऑथेंटिसिटी इन दैट. ऑथेंटिक नहीं है वो रिपोर्ट. कितना ऑथेंटिक है वो, उस पर कितना आप रिलाई कर सकते हो, उसने क्या मिस्टेक किया आपको क्या पता. सो व्हेन यू योरसेल्फ आर एग्जामिनिंग, और आप वर्कशॉप्स ही कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप रिपोर्ट लिख रहे हो. ठीक है कि हाँ दिस इज द रिपोर्ट, दिस इज द थिंग, दिस आर द फाइंडिंग्स, एक्सटर्नल फाइंडिंग, इंटरनल फाइंडिंग, इंजुरीज, इंटरनल ऑर्गन्स का, देन फाइनल कॉज ऑफ डेथ. सो इट इज योर रिपोर्ट एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ committing a mistake. There is one more question that a lawyer asked me, sir, डॉक्टर्स जब करते तो वो नेग्लिजेंस करके आता है.
फॉरेंसिक वाले नेग्लिजेंस कर सकते हैं क्या, ठीक है ना? तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट अ लॉयर आस्क्ड मी. आई सेड यस सर. हम नेग्लिजेंस नहीं करते हैं तो टैम्परिंग होने का चांसेस है ना. हाँ. जैसे कि इस केस में अल्कोहल का आप बोल रहे हो, यू टुक एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल. मैं उसमें ब्लड ले ही नहीं रहा हूँ. क्यों नहीं लिया मैंने? ले सकता था ना. आई वांट टू प्रूव डिसप्रूव. मैंने ब्लड लिया ही नहीं, और लिया तो मैंने किसी और का ले लिया. बेटे ने क्राइम किया, मम्मी का लेके रख दिया. ठीक है, तो मैनिपुलेशन टैम्परिंग कर ही रहा हूँ ना मैं. पॉइजन का केस है, डेथ हो गया है, बट मैं एफएसएल के लिए मैं कुछ ऑर्गन्स फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा हूँ. समझ में आया? तो फिर मैंने क्या किया? मैंने टैम्परिंग किया. माना कि नेग्लिजेंस करके मेरे ऊपर नहीं आ रहा, बट टैम्परिंग तो हो गया ना. एक फ्रॉडुलेंट एक्ट तो हो गया ना, रॉन्गफुल एक्ट तो हो ही गया ना. तो मेरे पे भी केस बनेगा. इट इज़ नॉट कि मेरे पे केस नहीं बनेगा, बनेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल. Okay, sir. You have come to the end of the podcast. ओके. अभी एक लास्ट सेगमेंट है जो मैं मेरे गेस्ट के साथ करती हूँ, विच इज कॉल्ड एज रेड पिल ब्लू पिल. ओके. आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपको कोई एक चूज करना है. दैट विल डिसाइड कि आप क्या करोगे आगे. यू विल टेल मी द फ्यूचर. फ्यूचर. माय फ्यूचर. यस. क्या बात. ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन है रेड पिल. आई विल गिव यू $100 million stat, ओके. बट यू विल लूज ऑल योर डिग्रीज. ओके. ठीक है, आप सिर्फ एक कॉमन पर्सन बन के रहोगे. दूसरा है ऑप्शन ब्लू पिल. उसमें आप जा रहे हो, टाइम ट्रैवल कर रहे हो पीछे, यू विल ट्राई टाइम ट्रैवल, बट यू कैन चूज ओनली वन प्रोफेशन, ईदर टू बिकम अ डॉक्टर और टू बिकम अ लॉयर. व्हाट विल यू चूज? विच पिल विल यू चूज? ब्लू. ब्लू. एंड आप क्या बनोगे? मेडिको लीगल कंसल्टेंट. वो ऑप्शन में नहीं था सर. As I've done MBBS, now I'm doing LLB, so you know, boom, mixture. मतलब आप दोनों डिग्रीज करोगे. Got it. See, I will tell you one thing. I do not regret being a doctor. I'm very happy कि हाँ, प्रोग्रेस होने को थोड़ा टाइम लगता है. You know, ऐसा नहीं था कि if you see the past 10 years of my life, I was not that successful as I am right now today. जितना खुश मैं आज हूँ 10 साल पहले नहीं था. या जब मैं पीजी कर रहा था, I had no idea कि इसके बाद फ्यूचर कैसा है. ठीक है ना. So I thought कि यार पोस्टमार्टम वगैरह वगैरह करना ही फ्यूचर है, और कहीं पोस्टमार्टम सेंटर में बैठे रहना, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन. आई हैड नो broader idea of what is there in forensic medicine. Right now, today, if you ask me, I'm very happy. Along with this doctor and this LLB degree, you know, I can give justice to many people. So, if you ask me to choose one among the two, I'll always go with doctor. Okay. Because I can act both the ways. But if I become a lawyer, I cannot become a doctor. Yeah, that is true. All right, sir. Thank you so much for joining me for this podcast today. Thank you so much for inviting me. You know, as I told in the beginning of the session, that you know, I feel very proud that all my students still remember me. You know, I told you, na, recently those students came in my college, and they, you know, they were like, "Sir, आपने हमको सिखाया है." और आज हम tutors बन गए. I felt little bad कि मैं old हो चुका हूँ. But at the same time, I was feeling good that you know my students are still remember me for maybe for my classes or the way I am, whatever reason it is, they remember me is a big thing. And that is the, you know, that is one thing that any teacher will expect कि future में कोई भी student मेरे सामने आके मुंह टेढ़ा करके ना चला जाए. So wherever they see me, whether in airport, station, road, or in any other colleges, they look at me, they should remember, they should come to me, they will be like, Phil sir, हम याद करते. That is any teacher's expectation, and I'm happy that my students are doing it. So I'm doing something good in my life. नहीं sir, I do remember you and I will always remember you for my life. Thank you. आपने मुझे बहुत support किया. Thank you so much, sir. Thank you so much. And wish that
I hope and pray that your podcast becomes more famous Thank you so much. and influence many people, educational way also and in other ways also. Also, for the viewers, please don't forget to subscribe, like, share, and please leave your thoughts in the comments. Tune in for more such conversations. Till then, stay tuned. Thank you. Bye. Like, subscribe, and whatever it is. Press the bell button also. Thank you, sir.